ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब कांग्रेस को अपने ही सांसद शशि थरूर से हुई परेशानी। विदेशी धरती पर भारत के पराक्रम का डंका बजा रहे 29 साल वन में काम कर चुके पूर्व मंत्री थरूर का नाम तक नहीं सुनना चाहते कांग्रेस के कुछ नेता व प्रवक्ता। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा पीएम मोदी का सुपर प्रवक्ता कहे जाने पर शशि थरूर अपने अंदाज में बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या करवाने वाले पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने व 11 मिलिट्री एयरबेस उड़ाए जाने को आम देशवासियों की तरफ बड़ी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं कांग्रेस नेता। पाकिस्तान का दावा झूठा साबित होने के बाद राहुल गांधी ने पूछ डाला था भारत ने कितने राफेल खोए वाला सवाल। भारत द्वारा अलग अलग देशों में भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, रविशंकर प्रसाद व अनुराग ठाकुर आदि सांसद सबसे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से रख रहे हैं भारत का पक्ष। पाकिस्तान से ही भारत के जवाबी हमलों की तबाही के वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सर्जिकल व एयर स्ट्राइक की तरह इस बार नहीं मांगे सबूत। I am very pleased to meet my friend, my brother, Mr. Dor. Panama and India are engaged in a very successful pattern for business, for education, and for eternal friendship. In regard to terrorism, we stand next to India. We cannot tolerate any kind of terrorism. We cannot tolerate countries sponsoring terrorism. We are a democratic country. India is the largest democracy in the world, which are values, principles, and we will fight against any kind of terrorism together. I'm just honored by the very warm welcome we received from Minister Martinez Acha. He really has been extremely kind, as he took the trouble also to get a couple of members of parliament to join his delegation, and on top of that we had his vice minister. So it was a very important meeting. We covered a lot of ground. The minister received our message on terrorism in a very receptive and open-hearted way, as you saw from his own comments right now. In addition, he raised a number of opportunities for close India-Panama collaboration in the future, particularly technology, education. He mentioned the IIT, schools of business and so on, pharmaceuticals, a lot of areas of future cooperation, which shows the commitment of the minister and his government to closer relations between our countries. It's regarding Shashi Tharoor. Sir, I'm very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी. No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. पहला सवाल ये है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है? नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे, सेना का कोई सम्मान नहीं। तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। To convey this message, we have a 7-member delegation which covers 5 political parties and represents all parts of the country. And what we are trying to do is to go to a few countries in this region. The Prime Minister has sent smaller delegations to other regions as well. Here is to explain to you our perspective on the recent events in our country and to seek your understanding for not just what we did, but what stand we have taken and the very helpful role that you have played in the Security Council. And we certainly hope
that your instructions to your ambassador will continue to be to show understanding for India's position. We know that Panama, if indeed the President of the National Assembly said this already, has consistently stood against terrorism. Terrorism should not be a resort of attempting to address international disputes. If there are problems, there are other ways of dealing with them. Sending terrorists across the border is simply unacceptable, and that should be made clear. We should go after the perpetrators, the killers ourselves, and we will do so. But those who give them safe haven, those who protect them, finance them, train them, arm them, dispatch them and guide them, they should also be held accountable. पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या करवाने की जिम्मेदार पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से इस्लामाबाद तक की गई जवाबी कार्रवाई से एक तरह से नाखुश नजर आने वाले कांग्रेस के कुछ नेता अब विदेशी धरती पर भारत के पराक्रम का डंका बजाने वाले अपने ही सांसद शशि थरूर से परेशान नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने जहां अपनी ही पार्टी के सांसद थरूर को पीएम मोदी का सुपर स्पोक्समैन कह डाला, वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता व प्रवक्ता मीडिया के थरूर से संबंधित सवाल पर जवाब देने से साफ इनकार कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप व 100 से ज्यादा टेररिस्ट जहन्नुम पहुंचाए जाने व भारत पर हमले की कोशिश के लिए इस्तेमाल किए गए 11 मिलिट्री एयरबेस को उड़ाए जाने के बाद हाल ही में भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से एक तरफ जहां दुनिया भर में रह रहे भारतीय बेहद खुश नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर इस बारे केवल मायूसी ही झलक रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अमेरिका के बाद शशि थरूर पानामा में भी मीडिया की सुर्खियों में रहे और यहाँ के विदेश मंत्री ने उन्हें अपना भाई व दोस्त कहते हुए भारत के साथ खड़े होने की बात कही। 29 साल वन में सेवाएं देने के साथ साथ मंत्री रह चुके थरूर के अलावा भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद व अनुराग ठाकुर तथा पीएम मोदी के धुर विरोधी कहलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भी विदेशी धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा मोदी का प्रवक्ता कहे जाने के सवाल पर शशि थरूर ने अपने स्टाइल में कहा कि उनके पास बहुत काम है और ऐसा बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी व इस्लामाबाद सहित 11 मिलिट्री एयरबेस पर किए गए जवाबी हमले के वीडियो पाकिस्तान से ही सामने आने के बाद इस बार सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक की तरफ कांग्रेस व वामपंथी दलों के नेता इस मिलिट्री ऑपरेशन के सबूत नहीं मांग रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया है और यदि पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो इस बार पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता व भारत के दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से नाखुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी कहलाने वाले कांग्रेस के कुछ नेता शशि थरूर द्वारा भारत सरकार का पक्ष मजबूती से रखे जाने से भी परेशान है। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है। भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है जीडीपी का और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है और वहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताब पढ़ी जाती है उसका नाम रहीक़ुल मख्तूम है। तो उसको तमाम लोगों के कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से और वो किताब लिखने वाला मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है वहाँ पर।